transform unit is further divided into three parts. The first part is finding out the Laplace transform. ठीक है, जो आज हम कर रहे हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, that is this part that we are going to do today. Laplace transform of elementary functions, then properties of LT. नाम मैंने बताया था, these are the same, but since the definition of LT is different, obviously the property would be different, right? Linearity property, shifting theorem, first and second, then Laplace transform of derivatives, integrals, multiplication by the powers of t, that means t raised by 1, t raised by 2 ऐसे t raised by n तक में, division by t, and Laplace transform of the periodic functions. Then the second part of this unit would be inverse Laplace transform. ठीक है, exactly what we are going to do today, जो उसमें होगा, that would be exactly the inverse opposite of this thing, this part, fine. And the third part of this unit would be the applications of Laplace transform. ठीक है, इसमें applications में I mean in Fourier transform we just have one application of Fourier transform in solving out the one dimensional wave equation. यहाँ पे सब है, ठीक है. So it is also one of the part of this unit, fine. So we are going to start with Laplace transforms today. These are the books that I'll be referring to, fine. There's a specific Spiegel, जो शॉम्स आउटलाइन सीरीज की बुक आती है, Spiegel, a dedicated book of Laplace transform that I've already shared in the very beginning of the semester. You have Yes, ma'am. seen that? You have seen that book? That is also shared in your teams, मेरे ख्याल से, I think, and as well as in the WhatsApp group I've shared. In the very beginning of the semester, I shared this book, the soft copy. Then Kreyszig is also one of the book. First of all, we'll be solving the solved and unsolved problems of the relevant portion of this Spiegel. Then we'll move on to solving some problems of Kreyszig, and you can see the problems of H.K. Das also. Fine. H.K. Das में थोड़ा सा गलतियाँ होती हैं, तो I'll not suggest कि सबसे पहले आप इसी पे मतलब as textbook I am not going to recommend H.K. Das. Okay, so let's start with the definition of Laplace transform. Transformation equations in the form of integral is integral transform. ठीक है, तो one of the integral transforms we have already done, we have already studied, that is the Fourier transform. The other type of integral transform that is in our syllabus is Laplace transform. ठीक है, तो we are taking this function जिसका मुझे Laplace transform निकालना है to be small. I'm denoting it by small f, small letter से denote कर रहे हैं, ठीक है. ft, it's a function. Then what would be the Laplace transform of this function? L से represent कर रहे हैं, जैसे curly f से represent करते थे वहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे curly L से represent कर रहे हैं, and inside this curly bracket जो भी function जिसका Laplace transform find करना होता है, that is there. We write that here. It is what? The definition is, it is integral 0 to infinity. Function लिखना है जिसका Laplace transform find करना है, e raised to power minus st dt, ठीक है. And we denote this by capital F. जो Laplace transform के बाद जो function मिलेगा मुझे, जिसका Laplace transform निकाला था, किसका निकाला था हमने? Small ft का. After finding out the Laplace transform, we get capital F S. Here S may be real or complex depending on the question. Fine. Is this clear? अभी इसमें जो है we are just concentrating, ये जो 0 से infinity integral की limit है यहाँ पे, this you have to see clearly that it is from 0 to infinity. वहाँ पे क्या था? It was minus infinity to plus infinity. It was covering the whole range.
यहाँ पे क्या है, e raised to power माइनस साइन है बट आयोटा नहीं है, यू कैन सी। क्लियर है ये चीज? यस मैम। Please, if you have any problem, then you have to unmute, otherwise mute yourself. Okay, the function, अच्छा इसमें what all things we can see, L is the Laplace transform operator which operates on this function ft, ठीक है, and this function ft is depending on t, fine, and obviously if an operator operates on a function, it is going to give you another function, and the new function we are saying it to be capital F with which depends on S, ठीक है। तो ये diagrammatically also it is clearly it is visible that ft, the original function, is in the t domain or time domain, and after we take its Laplace transform we get fs which is in s domain, or this is also known as frequency domain। तो time जो है वो frequency में convert हो रहा है। Is this okay? Any problem, anybody? No मैम। Okay. So we are going to find the Laplace transform of some elementary functions, since this was the first topic in this unit, fine. तो Laplace transform of elementary functions we are going to find it out। अभी सिर्फ समझोगे आप लोग, मैं आपको राइटिंग के लिए टाइम दूंगी, प्लीज जस्ट लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फाइन। वी टेक द फंक्शन टू बी, सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन क्या हो सकता है, 1 ले लेते हैं, ठीक है, एफ के इज 1, सो वी हैव टू फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ठीक है। और ये जो कर रहे हैं ये आपको हमेशा एलिमेंट्री फंक्शंस के Laplace ट्रांसफॉर्म याद होने चाहिए, आप निकालने नहीं बैठोगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको इफ़ यू वांट समवेयर to use this Laplace transform of 1, then you should remember always that it is equal to 1 by s. But how does this come? You should know this also, ठीक है। s here is positive, fine। तो exactly जैसे आप definition, ये जो आपकी definition है उसमें आपको ft को 1 पुट करना है and find out ft को 1 पुट करना है और find out this integral, you'll find that this comes out to be 1 by s। Clear है ये? Yes ma'am। Then the second function, elementary function, we are taking it to be t, suppose t ले लेते हैं, तो t का Laplace transform जो है 1 by s square होता है, again s is positive here, you can find out the Laplace transform, just replace this, yeah, he actually joined and he just shared his whiteboard, okay, ठीक है। तो the next elementary function we are considering is t, fine, and just replace ft by t and we'll see that its Laplace transforms comes out to be 1 by s square, ठीक है। ऐसे t square, t cube कुछ भी कर सकते हो, फाइन, एंड t raised पर n जनरलाइज कर देते हैं, तो Laplace transform of t raised पर n is what, गामा, गामा फंक्शन भी यहाँ पे आ रहा है, those who do not remember please revise it again। थोड़ा सा शुरू का पोर्शन कि गामा n+1 कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, जब n इंटीजर है या फ्रैक्शन है, जस्ट दी डेफिनेशन, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन यहाँ से हम n को 3/2 भी ले सकते हैं ना, तो t रेज़ पर 3/2 का अगर हमें l फाइंड करना है तो ऑब्वियसली यहाँ n को फ्रैक्शन में जब यूज़ करते हैं, देन हाउ डू यू फाइंड आउट जस्ट द डेफिनेशन, द वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने गामा फंक्शन में बताया था आपको, एंड n कैन बी integer, it can be fraction, तो दोनों के केस Yes में ma'am। how do you find the gamma function, obviously you'll be needing it, ठीक है। तो it comes out to be, अच्छा
डेफिनेशन आपको पता ही है गामा फंक्शन की इंटीग्रल फॉर्म में क्या होती है, जस्ट यूजिंग दैट हियर. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल t 3/2 का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये क्या आता है, इट कम्स आउट टू बी, अगर आप यहाँ से इसको याद होगा आपको तो आप क्या करोगे, इट इज बेसिकली गामा 5/2 बाय s 5/2. तो ऑब्वियसली गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. इट वुड बी, यहाँ पे n+1 इज 5/2, तो n वुड बी 3/2 है ना. तो n फैक्टोरियल. हाँ, तो n देन n फैक्टोरियल n गामा n होता है ना. यस मैम, ठीक यस है, मैम. तो n इज 3/2 गामा 3/2. अब गामा 3/2 को भी n+1 कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, हाफ 1/2 गामा. गामा 1/2. ठीक है, एंड गामा हाफ इज रूट पाई. ठीक है, तो जस्ट सॉल्विंग दिस यू विल गेट 3/4 रूट ऑफ. तो अगर आपको ये टी रेज़ पर n का जनरलाइज फॉर्म पता होगा एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट गामा फंक्शन फॉर in case n is equal to integer or a fraction, you don't even need to remember this t3/2 या किसी का भी remember करने की, you don't have to, just you can just find it out yourself. Fine. यस Yes, मैम. ma'am. Okay, so the next function is e raised power t, which is very important. बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं इसको हम. ठीक है, तो एग्ज़ाम में वैसे भी टाइम सेव करने के लिए आपको, तब वैसे भी आप लोग के पास जो है टाइम कम होगा. ठीक है, तो अगर आप ये e raised power t का कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़ करना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा, यू वोंट एक्चुअली डू दिस वे, यू वुड एक्चुअली रिमेंबर दिस टू बी 1/s-1. ठीक है, ओके. और वैसे अगर किसी को समझने के लिए करना है कि कैसे आया, तो ये भी मैंने प्रूफ कर रखा है. इज इट ओके? जस्ट सॉल्विंग इट, पुट e raised to power t in the definition. Similarly cos t का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इट कम्स आउट टू बी s/s² + 1. You can see how we are doing it. cos t को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया एंड यू ऑलरेडी हैव e raised power -st. एक्सपोनेंशियल्स तो आपको पता है, दो एक्सपोनेंशियल आ गए तो आपको सॉल्व करना होता है. So it becomes very simple. So is s/s² + 1. Similarly, if you have sin t, you can find the Laplace transform of sin t also. It comes out to be 1/s² + 1. ठीक है, it's बिल्कुल exactly the same way we are proceeding. sin t को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा एंड सॉल्विंग बोथ दीज इंटीग्रल्स. ठीक है कि नहीं? यस मैम. एलिमेंट्री फंक्शंस हैं अभी, लेकिन इनको जो है एक बारी देख लो प्रूफ कैसे करना है, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. ठीक है, ऐसे And ही in exam, proof comes or not? क्या The proof of these elementary functions. नहीं नहीं, Okay. बट अगर आपको याद नहीं है और आपको कभी मतलब कंफ्यूजन है तो निकालना तो आना चाहिए ना. अगर लगता है कि एस होना चाहिए कॉश में या नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना. देखो s² + -1. ठीक है, Yes, ma'am. हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात कर रही हूँ. तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट 2 मिनट में साइड पे निकाल के, रफ में निकाल के देख तो लोगे, वेरीफाई तो कर लोगे कि जो आपको याद है वो सीखे कि नहीं. तो इसलिए आपको प्रूफ्स आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज फिर ये होगा ना कि अगर यूज़ कर रहे हो और गलत लिखते हो तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके बाद से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. सपोज कॉस हाइपरबोलिक टी का कहीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहीं बीच में क्वेश्चन के यूज़ हो रहा है. ठीक है, और अगर आप इसको एस नहीं लिखते हो न्यूमरेटर में, लिखते हो 1/s² - 1, तो गलत हो जाएगा, विच इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, नॉट कॉस हाइपरबोलिक टी. ठीक है, इसलिए प्रूफ जो है एलिमेंट्री फंक्शंस के आना जरूरी है. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, चेंज ऑफ एक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद लिख लेना है ना.
प्रॉपर्टी करके उसके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि इफ यू रिप्रेजेंट एफ एस टू बी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, देन व्हाट वुड बी द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ चेंज ऑफ स्केल। याद है उसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी किया था, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टी है, बट सिंस द डेफिनेशन हियर इज डिफरेंट तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो एफ ए टी का अगर मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो क्या आएगा? 1/a एफ एस बाय ए, ठीक है। जो भी हम प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे विल यूज डेफिनेशन, ठीक है। तो हमेशा अब इसके बाद से जब आप प्रॉपर्टीज सीख लोगे उसके बाद से किसी भी क्वेश्चन को परफॉर्म करने के दो मेथड्स, मिनिमम 2 मेथड्स होंगे। फर्स्ट बाय डेफिनेशन, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एल टी, एंड द सेकेंड मेथड वुड बी यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, और प्रॉपर्टी अगर क्लिक कर जाता है कि ये प्रॉपर्टी ये वाली यूज हो रही है तो ऑब्वियसली मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड होता है। ये जो डेफिनेशन वाला मेथड होता है वो लेंदी मेथड होता है, क्योंकि आप उसको पूरा का पूरा जो है इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। मे बी एफ टी जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, फिर उसका इंटीग्रल निकालना में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी ना, तो यू वुड बी यू आर प्रोन टू मेक more and more mistakes if you use the definition. So therefore these properties are important, ठीक है। So by definition this is your fs। अभी क्या करना है? ft की जगह f80 पुट करना है and you have to solve the integral। तो 80 को मैंने क्या किया? substitution method लगा दिया, 80 को u पुट किया तो dt becomes this। तो wherever you have 80 you can put it to be u, और t क्या हो जाएगा? u by a, dt would be du by a। The limits would remain the same for this particular substitution, you can just verify। and 1 by a तो बाहर ले सकते हैं since it is a constant, तो अंदर क्या बचा? fu, इस तरह से लिख दिया। अभी ये जो u है ये तो आप u ले रहे हो, कोई और कहीं और x ले रहा होता उसको, तो कोई और y ले रहा होता, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इसको t भी ले सकते हैं, ठीक है। तो t से मैंने रिप्लेस कर दिया, जस्ट अ डमी इंडेक्स और कुछ भी नहीं है। तो u की जगह कुछ भी ले सकते हो, आई कैन इवन कीप इट एज t ऑल्सो। तो बट यू हैव टू रिप्लेस इट एवरीवेयर wherever you have u। so I'm replacing it by t everywhere। तो यहाँ पे u था, इसको मैंने t से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे u था, इसको t से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे u था, ठीक है। एंड इंटीग्रल के अंदर जो आप देखोगे दिस इज व्हाट, जस्ट कंपेयर इट विद एफ एस। एफ एस में यहाँ पे s है तो एफ एस बाय ए हो जाएगा ना, बिकॉज यू हैव एस बाय ए हियर, Yes, ma'am. ठीक है। एंड 1 बाय ए इज देयर ऑलरेडी, तो 1 बाय ए एफ एस बाय ए। क्लियर है ये? Clear, ma'am. Yes, ma'am. इसका अब एक क्वेश्चन करते हैं पहले, तभी और ज़्यादा प्रॉपर्टी याद भी हो जाएगी आप लोगों को, किस तरह के क्वेश्चंस में ये यूजफुल होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हर क्वेश्चन का देखो मैंने कहा था मिनिमम 2 मेथड्स होते हैं, तो मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन which method you find it easy you can use that, because क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, या कोई मतलब प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं, तब तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सम और द अदर प्रॉपर्टी। बट अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं आता है, सिंपली ऐसे आता है, तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन इट्स अप टू यू विच एवर मेथड यू want the question answer to be, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है? बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टी की है उसी का एग्जांपल कर रहे हैं। सो यू नो बाय दी हमने एलिमेंट्री फंक्शंस किया था अभी, इरेज पर टी क्या था? 1/s माइनस ए, जो कि मेरा एफ एस है, ठीक है। मुझे एफ एस चाहिए ना यहाँ पे, तो एफ टी मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एफ टी क्या है? ई टी। तभी तो मैं जब मेरे को एफ टी आइडेंटिफाई करूंगी
उसके अकॉर्डिंगली आई विल फाइंड आउट इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आई विल फाइंड आउट एफ एस. तभी एस को, जहाँ पे भी एस को क्या रिप्लेस करूंगी, एस बाय ए रिप्लेस करूंगी, देन और ओनली आई विल गेट एफ ऑफ एस बाय ए. ठीक है, तो ई रेस्ट पर ए टी क्या हो जाएगा, यूजिंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इट इज 1 by a f of s by a. So wherever I have here, wherever I have s, I'll just replace it by s by a and also multiply it with 1 by a, because this is what is my change of scale property which I am using here. Just इसको आप इसका LCM लो, rearrange करो, you'll get 1 upon s by a, s minus a. ठीक है, Yes, ma'am. और इसको हमने डायरेक्ट मेथड, कौन सा होता है डायरेक्ट मेथड, हमेशा डेफिनेशन वाला Integral मेथड वाला. होता है. हाँ, डेफिनेशन वाला मेथड होता है. बस क्या किया, एफ टी को रिप्लेस कर दिया इरेज पर एटी से. ये तो ऑलरेडी है ही आपके पास, इरेज पर माइनस एस टी डी टी. फाइंड इट आउट. सिमिलरली यू कैन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी ऑल्सो. इसमें बट यही है कि सिर्फ एफ टी को आइडेंटिफाई करना है. एफ टी आइडेंटिफाई कर लिया, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू कैन डिनोट इट बाय, you will denote it by s, f of s. Then when you are using the change of scale property, तो 1 by a से multiply करना है. wherever you have s, you will replace it by s by a. यहाँ पे भी s है, इसको भी s by a से replace किया. and ठीक है, और इसको भी आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो. These are simple questions. ऐसे ही sin 80 change of scale property and direct method can also be used. ठीक है, cos sin hyperbolic क्लियर है, ये सब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्लियर है सबको. Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. इसको, Yes, हाँ, ma'am. इसको आप लिख लो, बिकॉज आफ्टर you write this first property, we'll move on to the next property, which is the linearity property. So the next property is linearity property. ठीक है, what is linearity property? C1 and C2 are any constants. F1t and F2t are functions. ठीक है, जिनका Laplace transforms are F1s and F2s. So what would be the Laplace transform of C1 F1t plus C2 F2t? So it would be, हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को तो, बिकॉज लैप्लास जो है दिस इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल में से कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं. तो C1 LF1t plus C2 LF2t. What is LF1t is F1s, which is the Laplace transform of function F1, and F2s जो है it is the Laplace transform of F2t. ठीक है, so let's take the left hand side. C1 F1t plus C2 F2t, यहाँ ft की जगह आ जाएगा. rest everything is the same. Can solve both the integrals and see that you will get C1 F1s plus C2 F2s. कुछ प्रॉपर्टी के इसमें जो है ना प्रूफ भी आते हैं, जैसे आगे कराऊंगी. जैसे पीरियोडिक फंक्शन है या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उनके. सो लेट्स do this question. You have to find the Laplace transform of this function. This is the function. ठीक है, ये C1 F1t plus C2 F2t plus C3 F3t plus C4 F4t इस तरह की फॉर्म में है. So if you use the linearity property, it would be simply 4 L of this is, ये चेंज ऑफ स्केल से इसका L निकाल सकते हो. दिस इज व्हाट e रेस्ट पर at, a is 5 here. ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल से इसका e रेस्ट पर f5i का क्या आता है, 1 अपॉन s minus 5. S minus 5. ठीक है, सिमिलरली 6
इज द कांस्टेंट, C2 को बाहर लेते हैं, 6 टाइम्स टी क्यूब का क्या आएगा, टी रेज़ पावर n वाले का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है कैसे फाइंड करते हैं, इट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन S4. सिमिलरली -3 बाहर लेंगे, दिस साइन 40 इज व्हाट, 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 16. A अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है साइन का, देखा था अभी, Yes, ma'am. A अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकाला था अभी यहाँ से. So A is 4 here. तो 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16. इसी तरह से cos 2t क्या है, S अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, बस Yes, ma'am. It's easy. ठीक है, इजी है ना. तो यूजिंग दिस लिनियरिटी प्रॉपर्टी यू हैव फाउंड आउट द, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास कितनी मर्जी टर्म्स आ जाए, ठीक है, यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू इट. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's take one more question. This is the function now which is having different value for different values of t. 0 से 3 के बीच में its value is 5 and t greater than 3 में it is 0. तो क्या करोगे, definition में you would just break the limit, the integral को 0 से 3 plus 3 से infinity पे लेकर आ गए. 0 से 3 में function is 5, ये आ गया, यहाँ पे 0 आ गया. तो सेकेंड इंटीग्रल तो इट गोज अवे बिकॉज यू हैव अ 0 हियर इंटीग्रेंड में. फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर लो. सिंपल इंटीग्रेशंस. Yes, ma'am. So this is your linearity property. Now we move on to the third property, which is first translation or shifting property. Fine. You will find that linearity property is the first property written in the books, but हमने linearity property को second क्यों किया है, because हमने change of scale कैसे क्यों पहले किया, because जब तक change of scale नहीं करोगे आप e raised power 5t या sin 4t या cos 2t नहीं find कर सकते. ये change of scale से ही आया ना. cos t पता है आपको, but cos 80 तो नहीं पता है आपको. cos 80 जो है वो change of scale से आता है, that this is s upon s square plus 2 square. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you are using two properties simultaneously in this question. Okay. First, translation or shifting property. So this is the property, if L of ft is fs, which you usually denote, then what is L of, suppose ft के साथ कोई और exponential e bt अगर multiply हो रखा हो, शिफ्टिंग कर रहे हैं हम, ट्रांसलेट कर रहे हैं फंक्शन को, वहाँ पे ए इस पर बीटी को मल्टीप्लाई कर रखा है अगर साथ में एफ टी के, तो क्या होगा, इट वुड बी एफ ऑफ एस माइनस दिस बी. हाउ डू यू गेट इट? दिस इज द जनरल डेफिनेशन. जस्ट मल्टीप्लाई ई रेज़ पावर बीटी अलॉन्ग विद एफ टी. तो ई रेज़ पावर बीटी एफ टी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एफ टी ओनली नाउ, and you have e raised power minus st dt already there. दो exponentials हैं, club them, and what is this integral? This is, suppose ये तो मेरा s था, माइनस s था, तो यहाँ पे s लिख रही थी, यहाँ पे s माइनस b है, तो यहाँ पे s माइनस b लिखूंगी. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's take some questions. You have to find t square e3t. ठीक है. अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, हमेशा दिमाग में रखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है. और सबसे पहला मुझे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर मुझे यूज करना है तो मुझे सबसे पहले एफ एस पता होना चाहिए, देन ओनली आई विल रिप्लेस माय एस
बाय एस माइनस बी। बी यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे एफ टी क्या है, एफ एस तो मुझे एफ टी से पता चलेगा। व्हाट इज एफ टी, फंक्शन क्या है एफ टी, यू हैव टू आइडेंटिफाई, इट इज टी स्क्वायर। ओके, सो एफ टी इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का यू नो हाउ टू फाइंड आउट एल टी, दिस इज माई एफ एस, ठीक है। तो टी स्क्वायर ई थ्री टी क्या हो जाएगा, जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर्टी, ई बी टी है तो क्या है, इट इज whatever fs you have got replace s by s minus b। तो आपको जो भी मेरे पास यहाँ fs आया है, आई हैव गॉट 2 फैक्टोरियल या 2 अपॉन s क्यूब आया है, तो s को मुझे जहाँ जहाँ पे s है उसको किससे रिप्लेस करना है, बाय s माइनस 3, सिंस माई b is 3, ठीक है, ठीक है। सो इट इज 2 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस 3 होल क्यूब, यहाँ पे s है तो s माइनस 3 होल क्यूब होगा। Just find it out. What is 2 factorial is 2, s minus 3 whole cube. Again, I am telling you, if you do not remember the property, you can use the direct method also. Fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's take e raised power bt cos t. फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, मेरा एफ टी क्या होगा, cos t होगा। cos t का मुझे पता है एफ एस क्या होता है, cos t Yes, का ma'am. एल टी पता है मुझे, Yes, एस ma'am. अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये याद होना चाहिए हमेशा। इतनी प्रैक्टिस करो आज कि नेक्स्ट क्लास तक ये याद हो जाए, ठीक है। दिस इज माई एफ एस। अभी क्योंकि मेरे किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ई एस का बी टी के साथ, तो एफ एस जो है वुड बी रिप्लेस बाय एफ एस माइनस बी। wherever I have s I have in the numerator also, s square के साथ में भी है, यहाँ पे भी s है, तो wherever I have s I'll replace it by s minus b, so this would be my answer, s minus b upon s minus b whole square plus 1। हम जैसे पेपर में आएगा अगर ऐसे क्वेश्चन, तो बस ये डायरेक्ट मेथड से तो नहीं करना ना, ऐसा ही लिख के वैसे लिख पाएंगे। बस ये लिखो जैसे मैंने लिखा है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी ना, चलो प्रॉपर्टी लिख भी दो साथ में, ठीक है। बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, अब हमने तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी, इसलिए मैंने वहाँ लिखा नहीं है नीचे, नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी को कोड भी कर दो, तभी तो हम एफ एस निकाल रहे हैं। और फिर जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी कोड कर दिया, आप शुरू में भी प्रॉपर्टी कोड कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी हैज टू बी रिटन एनीवेयर, कहीं पे भी कहीं। अब तो जैसे यहाँ पे सेम आ रहा है ना, अब यहाँ पे क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, बी के टर्म्स में जनरलाइज, जो आपका ये जो जनरल प्रॉपर्टी है कि ये वाला, ये जो लिखा है, इसको प्रॉपर्टी को कोड कर दो। जैसे लिखते हो ना कि यूज फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे ये भी लिखते हो सर, एल ऑफ ई रेज़ पावर बी टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस बी। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो, वी नो दैट एल ऑफ टी स्क्वायर इज दिस, ठीक है। तो आपका जो एफ टी है वो क्या है, टी स्क्वायर है। जितना डिस्क्रिप्टिव बनाओगे आंसर्स को, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्ट मेथड भी करके देख सकते हो, बट यूल फाइंड दैट डायरेक्ट मेथड वुड बी लेंदी, और कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। ऐसे तरह से ई रेज़ पावर बीटी साइन टी भी निकाल सकते हो। बस आइडेंटिफाई करो कि प्रॉपर्टी कौन सी है, उसमें आपको एफ टी फाइंड करना है, बिकॉज एफ एस चाहिए, और जो भी एफ टी आया जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद ई रेज़ पावर बीटी, देन एस को रिप्लेस करना है विद एस माइनस बी। दैट्स द मेन थिंग, दैट इज द प्रॉपर्टी। सिमिलरली कॉश के साथ हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक के साथ हो सकता है। So this is the second translation of shifting property, second shifting or second translation property. Okay. Now this you already know. Fs क्या है? Fs is
L ऑफ एफ टी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि हमें L ऑफ जी टी क्या चीज है, L ऑफ जी टी। अब जी टी यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, जी टी क्या है, जी टी इज अनदर फंक्शन विच इज व्हाट, एफ के टर्म्स में कैसे जी को, मतलब एफ के टर्म्स में जी किस तरह से रिप्रेजेंट करा है हमने, एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड इट इज जीरो व्हेन टी इज लेस देन ए। समझ में आ रही है? अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं कह रही हूँ इट इज कैपिटल एफ एस, आई हैव अनदर फंक्शन जी टी which is related to ft in this form. When t is greater than a, its value is f of t minus a, and when t is less than a, its value is 0. And if I want to find out the Laplace transform of this particular function gt, which I have already defined earlier, it is what, e raised to power minus as fs. कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि है क्या? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now I take the definition. This is the definition of Laplace transform of a particular function ft, which I am denoting it by capital Fs. अभी क्या कर रहे हैं? Laplace transform of gt ले रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, trying to solve that. Fine. Obviously, Laplace transform of any function is represented, is defined in this form, है ना, 0 to infinity. अब यहाँ पे gt है तो ft की जगह gt कर दिया हमने, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, e raised to minus st dt, ठीक है। बट आई कैन break this integral into two parts. First part is I'll take 0 से infinity को मैंने 0 से a और a to infinity ले लिया. Why? Because I know my function gt is represented like this. ठीक है? It's having two values for different values of two. इसका जो वैल्यू है वो क्या है, एफ टी माइनस ए है व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, एंड इट्स वैल्यू 0 व्हेन टी इज लेस देन ए. तो टी इज लेस देन ए मीन्स ये वाला इंटीग्रल, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है 0 से ए वाला इंटीग्रल, तो वहां पे जो वैल्यू है जीटी की इट्स 0. अदरवाइज टी ग्रेटर देन 0 पे क्या हो रहा है, ए से इंफिनिटी पे जीटी क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Clear. तो फर्स्ट आपका इंटीग्रल जो है इट गोज टू 0, इट वैनिशेस. आई हैव टू सॉल्व द सेकेंड इंटीग्रल. सेकेंड इंटीग्रल में किस तरह सॉल्व करते हैं इसको, हमेशा सब्स्टिट्यूट कर लिया, t माइनस ए को u रख दिया, dt को d हो गया. ओके, लेट मी चेक द लिमिट्स आल्सो. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है आफ्टर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन? What are the limits now? होगा चेंज. 0 to infinity हो गया ये, ठीक है, Yes, ma'am. फाइन. तो आई एम राइटिंग इट एज 0 to infinity. दिस t माइनस a इज u, तो f u हो गया. और t की जगह क्या लिखूंगी, t की जगह लिखूंगी u प्लस a, Plus you. Yes, और ma'am. हाँ ना, ठीक है, और dt की जगह du. तो फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट लाइन, आई मीन वट एवर यू मे कॉल, इस पेज पे कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अभी ये जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या है, इट इज e raised to minus su, e raised to minus as, ठीक है. अभी जो इंटीग्रल है u पे है तो e raised to minus as तो कांस्टेंट है एक तरह से, कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटीग्रल, एंड इनसाइड द इंटीग्रल you have fu e raised to minus su du. आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. Muted है मैम. मैंने म्यूट किया हुआ था एक्चुअली, देयर वाज अ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा. ओके, अभी आ रही है आवाज़? Yes, ma'am. ओके,
सो ई रेस पर माइनस ए, ये जो ई रेस पर माइनस ए एस है ये वाला, इसको बाहर ले लिया और अंदर क्या है एफ यू, ई रेस पर माइनस एस यू डी यू। ये क्या चीज़ है, यू को मैं हर जगह पे यू को रिप्लेस कर सकती हूँ बाय टी, एंड Yes, sir. व्हाट इज दैट, इट इज एफ एस। ठीक है, ई रेस पर माइनस ए एस एफ एस आ गया। Yes, ma'am. Let us do questions of this property. So this is the type of function you would have for which you'll have to find out the Laplace transform. ठीक है, तो ft क्या है यहाँ पे, cos of t minus 2 pi by 3, एंड किस केस में है ये, t is greater than 2 pi by 3 में, और इसकी वैल्यू 0 है when t is less than 2 pi by 3। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, fs चाहिए। fs के लिए मुझे t को ft को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, व्हाट इज द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है मेरा, cos t है, इसका मुझे ऑलरेडी जो एलिमेंट्री फंक्शन है वो cos t है। तो cos Yes, t ma'am. है ना, cos t का आपको पता है व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज s upon s square plus 1। so this is my fs। so what would be L of cos t minus 2 pi by 3? It would be simply e raised to power minus as। a क्या है यहाँ पे, 2 pi by 3। so fs तो है ही साथ में क्या है, e raised to power minus as, s ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, 2 pi by 3 is your a। तो देख रहे हो आप प्रॉपर्टी से कितना वन स्टेप का प्रोसीजर हो जाता है, और अगर आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो देख लो हाउ मच यू नीड टू सॉल्व। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करना आया है आपको? हाँ मैम। Yes, sir. So once you identify your function, you can find fs। ठीक है, the elementary function जो है उसका Laplace transform is fs। so the property says that suppose इस तरह का कोई फंक्शन है, ये जो आपको गिवन है, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं, t ग्रेटर देन a पे कुछ और वैल्यू है, t लेस देन a पे कुछ और वैल्यू, a आपको पता है दैट इट इज 2 pi by 3 according to this question, fine। so how will you use the property? It is simply, if you want to find out the Laplace transform of such kind of a function, it says that it is equal to e raised to power minus as fs। fs you have already found, just multiply it with e raised to power minus as, a is 2 pi by 3। so e raised to power minus 2 pi s by 3 होगा, s into s square plus 1 ऑलरेडी है। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. so it's always easier to use property, but I didn't क्लिक भी करना चाहिए ना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करोगे, बट डायरेक्ट मेथड इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मिस्टेक्स भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स डू दिस सेकेंड क्वेश्चन। एफ टी सपोजेस टी ग्रेटर देन 1 पे इट्स वैल्यू इज टी माइनस 1 होल स्क्वायर, टी 0 से 1 के बीच में 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर is the elementary function जिसका Laplace transform you know is 2 by s cube। this is my fs। तो t minus 1 whole square का क्या हो जाएगा, 2 by s square, तो आएगा ही आएगा, fs तो आता ही आता है, e raised to power minus as भी आना होता है। what is a here, a is 1, तो e raised to power minus s से मल्टीप्लाई कर दिया fs। is this clear? you can solve it using direct method also and find out the difference effort wise भी, और बहुत ज़्यादा difference होता है। वैसे one step procedure है, if you again identify which property to be used। okay, let's do this also, क्योंकि scale property, change of scale
भी कर चुके हैं और हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कर चुके हैं दोनों, तो उसके बाद आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स कंबाइन दीज टू प्रॉपर्टीज कैन बी कंबाइंड इन क्वेश्चंस। तो एफ एस क्या है, यूजुअल आप एफ एस को कैसे डिनोट करते हो, इट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी देन ई रेज़ टू पावर बी टी एफ ए टी, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलिंग एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? When the e raised to the E power की bit पावर is of shifting यस and f function of at is scaling. यस, ठीक है। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या था, एल ऑफ एफ ए टी, ठीक है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था, एल ऑफ ई रेज़ टू पावर बी टी एफ टी। सो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, यूजुअली यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। तो इट बिकम्स व्हाट, अच्छा एफ, अगर मुझे एल ऑफ एफ ए टी फाइंड करना है तो क्या होता है, एल ऑफ एफ ए टी जो स्केलिंग प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल, वो उससे क्या आता है आपके पास, 1/f(s)/a। है ना, 1/a एफ ऑफ एस बाय ए, ठीक है। और अगर मेरे पास आता है ई रेज़ पर बी टी एफ टी, तो s - b से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक Yes. है। तो दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हो तो व्हाट यू विल हैव 1/a एफ एस माइनस बी बाय ए। क्लियर है ये? Yes, ma'am. So what you are doing is, firstly you are using change of scale property and then you are multiplying it with this and you are using shifting property. तो प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं, क्वेश्चंस में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट्स do the proof also by definition. Yes, हाँ बोलो। मैम इन प्रीवियस क्वेश्चन मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ, दिखा देती हूँ। मैम यहाँ पे जब t की वैल्यू मैम लेस देन 0 है तो मैम फंक्शन की वैल्यू हम क्या लेंगे मैम? गिवन ही नहीं है ना, वैसे भी वहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड ही नहीं है, 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइंड है, यस मैम ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइंड है तो यहाँ पे लेस देन 0 की क्या जरूरत है, यस मैम गॉट इट। ठीक है। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ एफ एस इज दिस, जस्ट एफ टी को रिप्लेस करना है किससे, ई रेज़ टू पावर बी टी एफ ए टी से। सो एफ टी को रिप्लेस किया मैंने किससे, ई रेज़ टू पावर बी टी एफ ए टी। रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम, यू कैन सी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल आर द सेम, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी आर द सेम, फाइन। तो लेट्स टेक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ए टी को क्या लिया, यू ले लिया, और जब ए टी को यू ले लिया और ये जो दोनों एक्सपोनेंशियल्स हैं इनको क्लब भी किया हुआ साथ में, देखिए, ठीक है। तो ए टी को यू ले लिया, यहाँ आ गया एफ यू, देन टी बिकम्स व्हाट, यू बाय ए, तो टी बिकम्स यू बाय ए, डी टी बिकम्स डी यू बाय ए। व्हाट अबाउट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, limits would change or it would remain the same? It will be same. Yeah, it Same. would remain the same, ठीक है, that's why I have written it to be the same, fine। अच्छा, अब यहाँ से क्या किया, 1/a को बाहर ले सकते हैं एंड इसको लिखना है, कैसे लिखना है, s माइनस b by a into u, so that you can just compare it with this, ठीक है। t की, इसको u को हमने t बना दिया पूरा बिकॉज जस्ट डमी इंडेक्स एंड देन कंपेयर इट विद दिस, सो यू विल फाइंड दैट व्हाट यू विल गेट, 1/a तो आ ही रहा है बाहर, अंदर क्या आएगा, s की जगह पे किससे रिप्लेस करना है मुझे, s माइनस b बाई a से, s की जगह यहाँ किससे रिप्लेस करूंगी, s माइनस b बाई a से, so you'll automatically get this property. Yes. Is this clear? ठीक है, बहुत स्टेप बाय Yes, स्टेप हो ma'am. रहा है, इतना स्टेप बाय स्टेप तो मेरे ख्याल से स्पीगल में भी नहीं मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हो, बिकॉज ये सारे नोट्स को ही मैंने टाइप किया है आप लोगों के लिए जस्ट फॉर यू। ओके, सो
लेट्स टेक एन एग्जांपल e रेज़ टू पावर bt cos 80, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो cos t का cos t इज द एलिमेंट्री फंक्शन, फाइन। उसका आपको पता है दैट दिस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, सो विल डिनोट इट बाय fs। सो अब क्या किया, e रेज़ पर bt cos 80 ले लिया, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी लेके करा, दिस इज 1 अपॉन a f ऑफ s माइनस b बाय a। सो 1 अपॉन a आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, वेर एवर यू हैव s you will have to replace it by s minus b by a। तो s minus b by a यहाँ पे भी कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया, होल स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस 1 ऑलरेडी है। जस्ट रीअरेंजिंग एलसीएम लेके एंड कुछ टर्म्स कटेंगी, वो सब देख के विल फाइंड दैट दिस कम्स आउट टू बी s minus b अपॉन s minus b होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है? डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ मैं, डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। अगर किसी को डायरेक्ट यूज नहीं करना आ रहा, ये भी कर सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी इन स्टेप्स। जैसे मैं आपको बता रही थी, पहले क्या किया, cos t ले लिया, एलिमेंट्री फंक्शन इज cos t, ठीक है। ये जो अभी जो करा रही हूँ ज्यादा फिजिबल होगा, मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छे से कर पाओगे आप। मे बी दिस प्रॉपर्टी, अगर किसी को प्रॉपर्टी याद है तब तो आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो, बट यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज इन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन इज I have identified the elementary function to be cos t, whose Laplace transform I know it is s upon s square plus 1, so I am denoting it by fs, capital Fs। फिर क्या किया, cos t से cos 80 पे आ गई, मतलब चेंज ऑफ स्केल यूज किया, ठीक है। वंस आई हैव यूज्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जो भी मेरे पास यहाँ आया उसको मैंने कैपिटल जी एस से, क्योंकि एल टी तो है ही ना, या किसी भी चीज का एल टी है तो उसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करोगे। ऑलरेडी कैपिटल एफ को आपने एल टी ऑफ कॉस टी के लिए डिनोट कर दिया है, यूज कर लिया है। तो एल ऑफ कॉस ए टी को मैं कैपिटल जी एस से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। सो अब क्या करना है, नाउ आई एम यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कॉस 80 आ गया चेंज ऑफ स्केल से, फिर अब क्या किया, मल्टीप्लाई इट विद e रेज़ पावर bt, सो दैट आई एम यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नाउ। तो क्या होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वॉट एवर आई हैव गॉट हियर उसको बस s को रिप्लेस करना है विद s माइनस बी। तो s माइनस बी यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो s माइनस बी से यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देखो जो फाइनल आंसर आया था फर्स्ट मेथड में, डायरेक्टली आ जाएगा। और इसमें थर्ड मेथड भी होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो हमेशा हर केस में होता ही है। समझ आया ये, हाउ वी आर यूजिंग प्रॉपर्टीज इन स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव यूज्ड शिफ्ट दिस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, एंड देन वी आर यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। Yes, ma'am. बट ये नहीं करना कि यहाँ पे s को s माइनस बी से रिप्लेस करो, यहाँ पे नहीं करना है, देन यू विल नॉट गेट a स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है cos l ऑफ क्या निकालना है आपको, e रेज़ पावर bt cos 80। अगर e रेज़ पावर bt cos t निकालना होता तो डायरेक्ट आप यहाँ पे s माइनस b से रिप्लेस कर सकते थे, बट आपको पहले जो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से यहाँ पे आना है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे आना है, एंड देन यू विल हैव टू यूज द सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। So you'll have to replace your s by s minus b here, not in the first step. Is this okay? Yes, Yes, ma'am. sir. जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही दिख रहा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे इस चीज को उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी और क्वेश्चन को देख के ही आपको स्ट्राइक करेगा दैट दिस इज द प्रॉपर्टी यू कैन यूज इन दिस क्वेश्चन। Any problem, anybody? At least say yes or no. No, ma'am. No, ma'am. No, problem. Okay.
So let's take one or two more questions of this type, this property. थोड़ा सा और ये cos ये ले लेते हैं, इरस पर cos ले लेते हैं, इरस पर bt cos हाइपरबोलिक 80। ठीक है, तो सारे ही मेथड्स देख लो मैंने किए हैं, जो भी आपको सिंपल लगे, मतलब इन दोनों में से तो कोई भी मेथड आप कर सकते हो, बट डायरेक्ट मेथड प्लीज अवॉइड करना। अगर बिल्कुल ही प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तब तो डायरेक्ट मेथड करो, मतलब बिल्कुल कुछ ना करने से तो बेटर है। बट डायरेक्ट मेथड में एक तो लेंदी हो जाएगा और दूसरी बात मिस्टेक्स बहुत होंगी, ये बता दूं मैं आपको पहले ही। आप अभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो डायरेक्ट मेथड भी हर क्वेश्चन का साथ में करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वॉट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट। आपको खुद ही दिखाई देगा दैट इफ यू यूज द प्रॉपर्टी इट बिकम्स सिंपलर। सो इसमें क्या है, कॉश टी फंक्शन ले लेते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन। जो पहले एलिमेंट्री फंक्शंस के वो तो मैंने बोला था ना आपको याद ही होने चाहिए आपको। उसके बाद तो हम प्रॉपर्टीज से आ जाते हैं सारे सब चीज़ों पे। तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन होता है कॉश का, विच इज़ माई एफ एस। अगर हम सीधा ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो 1/a एस माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो 1/a और यहाँ पे s माइनस बी बाई ए से दोनों जगह रिप्लेस करना है और आपके पास आ जाएगा आंसर। इफ़ वी आर यूजिंग प्रॉपर्टीज इन स्टेप्स, तो ये तो मेरा एफ एस हो ही गया। फिर मेरे को क्या करना है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। चेंज ऑफ स्केल में एफ ए टी कॉश ए टी। ठीक है, तो वेर एवर आई हैव एस आई हैव टू रिप्लेस बाय एस बाय ए दोनों जगह पे। सो दिस इज माई जी एस, लेट मी डिनोट इट बाय जी एस। अब क्या करना है, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या होगा, s को यहाँ पे s को s माइनस बी से रिप्लेस करना पड़ेगा। इज इट Yes, ma'am. फाइन? जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना आप हाथ चलाओगे, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, एनकरेज होगे कि हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको खुद ही अच्छा फील गुड फैक्टर आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स मे बी नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, अब पहले देख लेते हैं कितना, क्योंकि इतना करना भी, इसको पूरी तरह से लिख लो पहले, एटलीस्ट कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, राइट इट डाउन। लीनियरिटी लिख ली थी क्या आप लोगों ने? नहीं लिखी नहीं थी ना? मैम, लिनियरिटी लिखना है। हाँ मैम। समझ में आ रहा है सबको? बिकॉज Yes, ma'am. या ट्यूसडे क्लास में हम इसके आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। सो ट्यूसडे क्लास से पहले प्लीज जितनी प्रॉपर्टीज अभी आज हमने की हैं उसको रिवाइज जरूर करना। फाइन।